Good morning, students. In this particular lecture, the topic of discussion is solution of polynomial and transcendental equations. The part which we have already studied in this unit was different, but these parts are different. What are the polynomial and transcendental equations? First, we know about the polynomial or transcendental equations. क्या होती हैं? Okay, students. Then the real number alpha is called the real root. यानी अगर we are considering that alpha is the real root of any equation, it means the that particular equations or that particular function should be equal to 0 at that particular value. F of alpha is equal to 0, then this will be the real root. अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, तो दैट वैल्यू इज द रियल नंबर. Practically, the real root of the equation f of x is equal to 0 is the value of x, where the graph of f of x meets the x-axis in rectangular coordinate system. The equations x की power cube minus 7x plus 8 is equal to 0 and x की power 4 plus 4x cube plus 7x square plus 6x plus 3 is equal to 0. Both are algebraic equations. Both are algebraic equations. These equations are also known as polynomial equations. Yeah, okay. ये क्या है आपकी polynomial equations. But if we include 3x is equal to 3x plus 1, x minus 2 sin x is equal to 0, e की power x is equal to 4x, या फिर if we are considering log x is equal to 4x plus 1, then such type of equations are known as transcendental equations. Okay, students, then I think you clear about what are the polynomial equations and what are the transcendental equations. If we will assume that the equation f of x is equal to 0, जो भी particular equations we have to give in, suppose that f of x is equal to 0, okay, at any value of x, has only isolated roots, which are for each root of the equations, there is a neighborhood which does not contain any other root of the equations. Approximately, the isolated root of the equation 1.1 has two stages. 1.1 has two stages. Okay, students. First is isolating the roots, that is finding the smallest possible interval a comma b containing one and only one root of the equation. Okay, यानी कि जो भी पर्टिकुलर रूट्स अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, आइसोलेटिंग द रूट्स दैट इज फाइंडिंग, यानी कि रूट्स को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पर वी आर गेटिंग आइसोलेटेड द रूट्स, दैट इज फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल a comma b containing one and only one root of the equations. ठीक है, अपने को इस तरीके का एक इंटरवल फाइंड आउट करना है, जैसे जिस इस पर्टिकुलर x की वैल्यू पर अगर ये 0 के इक्वल हो रहा है, बट इनिशियली वी डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बट वी कैन गेट ए इंटरवल. अगर अपन अज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर वी आर अज्यूमिंग स्टूडेंट्स, एक मिनट, a comma b, this is the two value in which roots will lie. सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये 5 है और ये वैल्यू मान के चलिए 7 है. तो स्टूडेंट्स ये आपका a वैल्यू हो गया, ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये b वैल्यू हो गया. तो जो भी आपका रूट्स रहेगा x की वैल्यू, वो इन दोनों के बीच में लाई करे. इस टाइप का एक इंटरवल, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल हो, वो अपने को फाइंड आउट करना होता है. इम्प्रूविंग द वैल्यू ऑफ द अप्रॉक्सीमेट रूट्स, उसके बाद जो अप्रॉक्सीमेट रूट है उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करना होता है टू द स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ द एक्यूरेसी.
जिससे कि क्या है कि वो पर्टिकुलर एक एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक उसको अचीव कर सके. नाउ वी स्टेट a very useful theorem of mathematical analysis without proof. Here we will study a mathematical theorem that is much more important as point of view. Theorem: if a function f of x assume value of opposite sign at the end point of the interval a comma b, अगर कोई पर्टिकुलर गिवन फंक्शन f of x क्या करता है, इट टेक्स द वैल्यू ऑफ अपोजिट साइड. सपोज अगर फंक्शन में अपने a की वैल्यू पुटअप की, देन इट इज टेकिंग सपोज पॉजिटिव. और अगर फंक्शन में अपने b की वैल्यू पुटअप की, सपोज इट इज टेकिंग नेगेटिव. तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अगर इसको इस तरीके से स्टूडेंट्स हम समझें कि ये मान के चलिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है. ओके, फंक्शन तो आपका इस तरीके से ही होगा भाई, ये कोई पर्टिकुलर एफ ऑफ एक्स आपका क्या है स्टूडेंट्स, देयर इज ए कोई एनी फंक्शन. सपोज किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर वी आर कंसिडरिंग के ए वैल्यू है, इस ए वैल्यू पर यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर वी आर गेटिंग दिस वन. और इस पर्टिकुलर वैल्यू सपोज करिए ये यहाँ पर b है, ठीक है, और इस b की वैल्यू पर ये जो वैल्यूज है अपनी, ये स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये, ओके, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर यू आर गेटिंग दिस वन. तो यहाँ पर देखिए b वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है. इस पर ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक पर नेगेटिव, एक पर आ रही है पॉजिटिव. देन दोनों का जो कांस्टेंट, यानी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी गेट नेगेटिव. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज, ठीक है, वो क्या आएगा आपका, वो नेगेटिव आएगा. ओके, नाउ अहेड फर्दर चलते हैं. देन द इंटरवल विल कंटेन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो जो इंटरवल है, ठीक है, जो अपन इंटरवल कंसिडर कर रहे थे स्टूडेंट्स, कि भाई उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू प्लस है, दूसरे पर माइनस है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में डेफिनेटली उस पर्टिकुलर फंक्शन का एक न एक रियल रूट जरूर होगा. क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा. जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि ये इस तरीके से लाइन है, या तो फंक्शन ऐसे जाए, ये वैल्यू, ओके, तो ये वैल्यू मान लीजिए ए हो गया, और ये वैल्यू मान लीजिए बी हो गया, बी पर वैल्यू. बट ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन आपका अपोजिट हो, इस तरीके से जा रहा हो, यानी ए पर ये क्या हो सकता है, इसमें नेगेटिव, और बी पर ये क्या हो सकता है, इसमें पॉजिटिव. ठीक है, और बी पर ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, इसमें पॉजिटिव. तो ये दोनों जो वैल्यू आपने को मिल रही हैं, गेट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग बोथ वैल्यूज ए और बी. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाली प्रॉब्लम्स आपको फेस आउट करनी होती है. ओके स्टूडेंट्स, अगर आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इन अदर वर्ड्स देयर विल बी एटलीस्ट वन नंबर, यानी सी, ओके, ए कॉमा बी, सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0. So throughout our discussion in this chapter, we assume that f of x is continuous and continuous differentiable up to sufficient number of times. तो यहाँ पर डिस्कशन ये निकल के आता है स्टूडेंट्स कि भाई f of x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, f of x इज इक्वल टू 0 हैज़ नो मल्टीपल रूट्स, और इसके कोई भी मल्टीपल रूट्स नहीं है. इट हैज़ ओनली इफ c इज ए रियल रूट ऑफ f of x इज इक्वल टू 0, देन f of c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 0. तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है. तो a वैल्यू पर वी आर गेटिंग f ऑफ a दैट इज प्लस, b वैल्यू पर वी आर गेटिंग f ऑफ b दैट इज माइनस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ये f ऑफ b है, ये f ऑफ a है. तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी रहेगी, ये वैल्यू क्या आपकी c वैल्यू है, इस पर्टिकुलर c वैल्यू पर वी आर गेटिंग ए रियल रूट्स. तो वी विल डिस्कस द फॉलोइंग मेथड. तो इस तरीके से
क्या करेंगे स्टूडेंट्स? We will solve the numerical problems. So in this chapter there are three methods that we will discuss. Bisection method, okay, false position method, regular false method भी बोलते हैं इसको, और न्यूटन रैप्शन मेथड. तो ये तीन मेथड है स्टूडेंट्स, जिसमें से कोई ना कोई एक मेथड आपको डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, और यूनिट 3 में ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. इनको क्या करेंगे, वी विल फर्दर डिस्कस. पॉलिनोमियल इक्वेशंस में आपको बता चुका हूँ. पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती है? इस तरीके की कोई भी इक्वेशंस होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स एन माइनस वन, मतलब इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशंस हो सकती है, ठीक है, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशंस. और ये भी जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है, ये सारी की सारी क्या है बच्चों? ये सारी की सारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस है, ठीक है. और एक इक्वेशंस विच कंटेन पॉलिनोमियल्स भी हो, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जिसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन हो, जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ऐसी इक्वेशंस को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं. यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस में ओनली पॉलिनोमियल टर्म्स ही रहेंगे, एल्जेब्रिक टर्म्स ही रहेंगे, तो वो इक्वेशंस पॉलिनोमियल कहलाएगी. बट पॉलिनोमियल के अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो आपकी इक्वेशन ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस कहलाती है. ओके स्टूडेंट्स, फाइंडिंग द रूट्स और जीरोज ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट तरीके से समझा चुका हूँ पहले ही. वही चीज़ है, ये मान के चलिए एक वैल्यू पर आ रहा है, ये दूसरी वैल्यू पर आ रहा है, तो ये अल्फा क्या है? अल्फा वह वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? जीरो. तो इस पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? जीरो. तो जीरो होने के बाद में इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है. इसमें जो अपन मेथड्स स्टडी करेंगे वो मैं मेथड आपको एक बार बता चुका हूँ. तो वन बाई वन वी विल स्टडी दोज मेथड. एक बार आप इससे पूछ लो.